Hello, friends. A very warm welcome. And let's start with the first topic, which is there about monsoon. So, monsoon is a very important phenomenon, not just for agriculture, but also for Indian, if I use a big word, for even strategic development. So, monsoon hits Kerala, earliest onset since 2009. So, what we have to look over here is that there is a chart given over here. Then, from 2009 to 2025 onwards, all the dates are being given. So from those dates, you just to have to take an idea that what is the normal schedule, how it is arriving early, and when it has not been coming up early. And one point more we should take into account is that whenever it is, arriving early, is it bringing the above normal rainfall? And what is the percentage in terms of long period average? And I have one more question for all of you, that how much is amount the rainfall the southwest monsoon brings into India? Coming to the next topic, which also talks about that how fast showers when they come in Kerala and in Tamil Nadu, are they really bringing the meaningful change? Because for the first time, the monsoon is covering the parts of Karnataka, Tamil Nadu, Mizoram, and simultaneously on the onset day, it is hitting Karnataka before reaching Kerala. For example, it used to happen sometimes in 1990s also. So, what is this predicting? That is what we have to see. Monsoons advance into entire Goa and rest of the areas also. And if we speak, then why there is a lull? Once monsoon starts, how there become a lull? It stops and then it starts again. General no longer so general, 36 hours on board a Amrit Bharat train. So this is an example that how in modern India, the general coaches and even reserved sleeper coaches are actually coming up with the charging sockets, emergency, talk back unit, radium illuminated flooring strips, LED displays with real time on train speed. Next station, toilet with vacuum evacuation and order control and electro pneumatic assisted brake system. बहुत बहुत खास बात है ये, क्योंकि आप उस भारत में नहीं चले हो जिस भारत के अंदर आदमी ऊपर नीचे गिरकर पसीने की बदबू में ताबड़तोड़ तरीके से ट्रेवल करता था। उसे अपनी जगह पहुंचना होता था और पहुंचने के लिए हमारे पास मौके भी नहीं थे। लेकिन ये जो आप चार्जिंग सॉकेट से लेकर और जो वैक्यूम इवैक्यूएशन जो टॉयलेट्स की हम बात कर रहे हैं, दे रिफ्लेक्ट्स अ चेंज। सो प्लीज इसको इनग्रेन करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी यही है कि मैं आपको एक जनरल या स्लीपर की ट्रैवल यात्रा पे लेके जाऊं, तभी आप सीखेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर आर सपोर्टिंग एक्टर्स व्हेन द हीरो डजंट परफॉर्म। सो ये आपके जो आइडिया है म्यूचुअल फंड के ऊपर दे रहे हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर एलोकेशन की बात कर रहे हैं, इक्विटी फंड, इक्विटी वैल्यूएशन और मार्केट कैप की बात हो रही है। तो क्वेश्चन यही है, इसमें हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से यही बात आती है कि मार्केट फ्रेंडली अप्रोच होनी चाहिए, रेगुलेशन स्ट्रांग होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और साथ साथ में इंडिया का जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है वो ग्रो होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्वे हो जाए। इसका डार्क साइड भी है। इट्स डार्क साइड इज साइबर फ्रॉड्स। इसका डार्क साइड है कि इसके चक्कर में जो डेली हजारों कई हजार करोड़ के जो फ्रॉड्स हर महीने हो रहे हैं, वो हमें देखने हैं कि वो कैसे कम हो पाएंगे। इसके लिए I4C का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो यू शुड सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। मूविंग फर्दर, लीवरेज, FTAs, रिमूव ऑब्सलीट लॉज। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यानी जो आपके फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उनको हमें समझना होगा। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तभी आगे बढ़ेगा जब आप सेंटर और स्टेट की पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे। सो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, states like northeast states, if we speak about, or even state of Punjab, every state have their own role to play. So it is a platform, and civil defense preparedness is there in the hands of states. And when we move forward, then we try to understand कि कैसे there are different topics and different ideas. For example, regulatory oversight, informal work arrangements flagged in the report in the death of sanitation workers. So this is happening since ages. वट एवर, ऑन वन हैंड हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, अमृत भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म नहीं कर पाए हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैला ढोना, यानी आप उस गटर में नहीं घुस सकते जिसमें आप उन व्यक्ति को घुसाना चाहते हो, और वो उनमें से मैला निकालते हैं और वो सेप्टिक टैंक्स भी साफ करेंगे। सो
There is need for rehabilitation, there is need for more investment, there is need for mechanization, there is need for protective equipment and medical insurance, there is need for criminal accountability of contractors एंड कंपनसेशन डिस्पर्सल विद इन 30 days, एंड नेशनल लेवल डिजिटल रजिस्ट्री होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशंस हैं। तो ये रिकमेंडेशन बॉक्स आप मेंस के लिए इसको नोट कर लीजिए। आपको खाली नहीं बैठना है सामने, आपका नोटबुक और पेन चलते रहना चाहिए। अगर हम आगे बात करें तो आप देखते हो कि डिजिटल ओवरलोड, यानी कि अभी मैंने बात की थी साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम है, पुलिस स्टेशंस हैं, एंड देन यू हैव एक्सपर्टीज है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि पहली बात तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसके बाद हमें साथ साथ में हमें ट्रेनिंग चाहिए, साथ साथ में फिर आपको चाहिए कि सिटीजन अवेयरनेस चाहिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि व्हाट आई कैन से दैट जो सेंटर और स्टेट लेवल का इंटरेक्शन है वो ज़्यादा चाहिए। तो इंडिया नीड टू ऑब्वियसली रिक्रूट एंड ट्रेन मोर ऑफिसर्स इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, वो हम कर रहे हैं। और उसके बाद रियल टाइम कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, डेटा एक्सचेंज भी हो रहा है। और सिर्फ इंडिया इंडिया की बात नहीं, हमने G7 कंट्रीज के साथ भी ऐसा किया है। और हमने यू नो so what I can say, we are making a resolutions and we are making relationship with Interpol and other countries also. So there are different aspects to it. There is a very whole command and chain system, जिसके लिए अलग से हम शॉर्ट नोट बनाएंगे तो वो सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। When we speak about hypertension, which is a silent killer, so hypertension और high blood pressure उसको इसीलिए कहा जाता है because the symptoms are generally not noticeable जब तक डैमेज बॉडी को ना हो पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स वेरियस ऑर्गन डिसऑर्डर्स के लिए। तो पॉइंट यही है इसके लिए, हेल्दी लाइफ। और आप अपने उसको कंट्रोल कीजिए, नमक को कंट्रोल कीजिए। और मॉडरेट ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सब कीजिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। वेट लॉस चाहिए, अल्कोहल को लिमिट कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए। यंग एज में भी ऐसा होता है। सो डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, हाई इन फ्रूट वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ये इंपॉर्टेंट है। मूविंग फर्दर, व्हेन वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ स्पिक मैके, अब तो पहले से कम आता है लेकिन पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आते थे स्पिक मैके में। जो ये राजा राधा रेड्डी, एन राजम, शेख महबूब सुहानी, और ये जो कालिशबी महबूब और विश्वमोहन भट्ट, प्रवीण सुल्ताना, एंड शबाना आजमी, जावेद अख्तर, एंड देन आफ्टर दैट हरिप्रसाद चौरसिया जी का भी यहाँ पर फोटोग्राफ है। तो ये सारे जो लोग हैं ये लेजेंड हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनका बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कल्चरल हेरिटेज में। तो मेंस में आप इनकी कला के बारे में लिख सकते हैं, आप इनका इम्पैक्ट लिख सकते हैं, और प्रीलिम्स में इनके नाम आ सकते हैं। और वी हैव टू सी दैट हाउ दे आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इंडिया वाइब्रेंट, हैप्पी एंड कलरफुल। ये सारे नाम प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और प्रीलिम्स में कभी इनका नाम आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। 46% पोस्ट इन पोल्यूशन बोर्ड्स वेकेंट, स्टेट्स एंड यूटीज मिस्ड एनजीटी डेडलाइन टू फिल दिस। तो क्यों हमारे यहाँ पूरे भारत में एक ये कल्चर है कि मुझे आईएएस आईपीएस तो बनना है लेकिन देश के सुधार से कोई लेना देना नहीं है। मुझे हमेशा एक पर्क और पावरफुल पोजीशन ही चाहिए। तो पोल्यूशन कंट्रोल को हमेशा सरदर्द का विषय माना गया है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सीपीसीबी हो गया या फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हो गए। इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स जो हैं उनके भी, वहाँ भी बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं। और ये पोल्यूशन वॉचडॉग बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में 90% वैकेंट है, उत्तराखंड के अंदर 72%, आंध्र प्रदेश में 71%, गुजरात में 60%। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु इज अ मॉडल। तमिलनाडु जैसे स्टेट्स को हमें देखना चाहिए। और हमें देखना है कि सीपीसीबी और एसपीसीबी दोनों के रोल क्या है। एनजीटी के बोलने के बाद भी नहीं हुआ तो इसका मतलब वही है कि भाई आप इसके लिए और डंडे की जरूरत है। तो आप क्या सुझाएंगे मेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में क्या पावर्स और ऐड करना चाहेंगे, या क्या उसकी वर्किंग आप करना चाहेंगे जिससे उसके अंदर एक बेनिफिट आए? नोन फॉर हिज एफर्ट्स टू सेव जीआईबी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट डेड। बड़े अफसोस की बात है, इट इज़ वेरी शॉकिंग एंड सैड। राधेश्याम पेमानी बिश्नोई जी, जो कि जाने जाते थे क्रिटिकली इंडेंजर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बाकी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, वो एक रोड एक्सीडेंट में नहीं रहते हैं। So it is very sad, but then it is an inspiration for future generations. It is inspiration for all of us that we must take a cause. He took a cause. He lived a better life. He lived an amazing life.
than many more people who are living every day and creating a social chaos. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप एथिक्स में इनको रोल मॉडल की तरह लिख सकते हैं. मूविंग फर्दर, व्हेन इंडियन एमपीज स्कोर्ड अ डिप्लोमेटिक विन इन 1971, तो ये बात वही है. प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू विद माओ जेडोंग, चेयरमैन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन बीजिंग ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल विजिट ऑन अक्टूबर 23, 1954 गए. और अब आप गवर्नमेंट ने इतने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजे अभी, तो उसके अंदर भी कई पॉइंट उठ सकते हैं कि हिंदुस्तान के पास भी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ये हैं. प्रीलिम्स के अंदर आईपीयू पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज इट स्ट्रक्चर एंड बॉडी. तो पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है, इंडियन पार्लियामेंट जॉइन आईपीयू इन 1948-49, और सीपी एक स्मॉलर बॉडी है. इट मेंबर्स बीइंग पार्लियामेंट दैट वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. सो 1911 में स्टार्ट हुआ, तो ये सिमिलर वे से वर्क करते हैं. तो क्वेश्चन यहाँ उठता है कि फॉरेन अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी जो फॉरेन अफेयर्स को दिखाने के लिए होती है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से डिफरेंट होता है वो. और भी एग्जांपल यहाँ पर आए हुए हैं जो बार बार बाकी आए हैं, जैसे कि 1971 में जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, तो शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग इट इज़ विनिंग 160 सीट्स ऑफ 300 सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान. सो इसलिए ब्रूटल क्रैकडाउन बाय द पाकिस्तानी आर्मी, किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियन. सो इंटरवेंशन बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सच एज समर गुहा, अटल बिहारी वाजपेयी, इट वुड लीड लोकसभा टू स्पीक इन वन वॉइस. तो सब लोग एक ही भाषा में बोलते थे. आज का बांग्लादेश इस बात के लिए थैंकलेस हो गया है, लेकिन लोगों के लिए हम नहीं कहेंगे, हम सरकार के लिए कहेंगे. तो द गवर्नमेंट सब्सिक्वेंट डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इज वेल डॉक्यूमेंटेड, और उसके बाद हम जानते हैं. तो इसीलिए इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन जो आईपीयू जिसकी हम बात कर रहे हैं, अ, अ, वो पेरिस में जो उसकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है, 500 पार्लियामेंट्रियंस फ्रॉम 60 कंट्रीज, 200 ऑब्जर्वर्स फ्रॉम 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके सामने हमने बात की. ढिल्लो, जीएस ढिल्लो, हु ही विल बी लीडिंग इंडियन डेलीगेशन ऑफ 10 एमपीज टू पेरिस. तो जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ज्योतिर्मय बसु, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये नाम सब आपको पता होने चाहिए. पीएम सईद, शीला कौल, केपी उन्नीकृष्णन, प्रणब मुखर्जी, ये जो हैं सारे के सारे डिस्टिंग्विश्ड और स्टेट्समैन लीडर्स हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है. तो एग्जाम्पल यही है, जैसे अभी मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड. सो ये एक उसका आइडिया है कि पीछे भी ऐसे एफर्ट्स हुए हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक नई बात है. Young generation has a way to come up with the terms that hit the nail on the head. These conversations define cultural movement we currently find ourselves in. तो ये पर्सपेक्टिव है कि भाई, अब जो है, आप जानते हो कि कितना ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें मैकेनिकल हो चुकी हैं. एंड अब आपको जो है ऑनलाइन आपको लाइकेबिलिटी चाहिए, आपको डेटिंग चाहिए. और आप देखिए कि वेयर डू आई फिट एंड हाउ लाइकेबल डू बॉयज थिंक आई एम, ये क्वेश्चन उठ जाता है. ग्रेड 7 गर्ल्स के क्वेश्चन उठ गया. 15-year-old डिया ब्लेम्स हरसेल्फ, इफ ओनली आई हैड बीन थिनर प्रिटियर आई इट वुड नॉट हैव हैपेंड. मेरे को और लोग भी पसंद करते. तो ये साइकोलॉजिकली और कितना ज़्यादा प्रेशर आता है. पैट्रियार्की इज शेप शिफ्टिंग बीस्ट एक तरीके से. और आपको जो है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें दिखाता है वो. मेल वैलिडेशन चाहिए, यू नो. तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें जो है अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा, हमें सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको तोड़ना पड़ेगा. गलत बात यदि गलत है तो वो गलत है, किंतु अब बनारस भाषा की यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो उस भाषा में तो, बनारस भाषा में तो गाली भी होती है, लेकिन वो गाली गाली नहीं है. हम ये नहीं कह रहे कि अब्यूजिव वर्ड्स को प्रमोट किया जाए, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको हर चीज़ एक कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेक्चुअल अप्रोच से देखनी पड़ेगी. So this is how it is. So this is just an example that how the scenario is changing. इन्होंने इस तरीके से समझाने की कोशिश की. मशरूम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स. द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी. तो उसके अंदर क्या मशरूम पॉइजनस होते हैं, क्या इंडिया में किसी टाइप के मिलते हैं, ये पर्सपेक्टिव से आप इसको जरूर देख सकते हैं. देयर आर मोर देन 1,48,000 स्पीसीज ऑफ फंजाई एंड 300 आर पैथोजेनिक टू अस. इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. रिच इन विटामिन बी, सी, डी एज वेल एज फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन एंड मशरूम. इट इज अ फूड सोर्स विद न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स. 6% ऑफ एडिबल मशरूम्स हैव मेडिसिनल क्वालिटीज एंड हेल्प बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम. सम स्पीसीज आर एंटी डायबिटिक, वो ट्यूमर ग्रोथ को भी रोकती हैं और एड्स को भी रोकती हैं. सम फंजाई कैन इवन डिकम्पोज pollutants such as plastics, petroleum based products as biopest controllers. They can increase the growth of forest in degraded areas. Very very important for the prelims. Underground network of hyphae mycorrhiza fungi called the wood wide web. It obtains nourishment from plants and trees in exchange for carbon. They also enable trees to share nutrients with each other. Those in excess can supply
टू दोज इन डेफिसिट वाया द हाईफे. सो एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. दिस इज व्हाट वी कैन से हियर. मूविंग फर्दर, understanding the role of an artist. One of the new galleries at the Academy of Fine Arts and Literature in Delhi features अपना कौर. अपना कौर एक बहुत ही शानदार, बहुत महान, मैं कहूँगा कलाकार मॉडर्न इंडिया के रहे हैं, अर्पणा कौर. और उनके विषय में यहाँ बताया गया है कि कैसे वो अपने समय को दर्शाती हैं. तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, आर्टिस्ट अर्पणा कौर on curating new galleries, the influences that shaped her and why she doesn't shy away from डिपिक्टिंग ट्रॉमा ऑन हर वर्क. उनका फोटोग्राफ भी सामने हम देख सकते हैं. तो वही है कि भाई उन्होंने कभी शाई नहीं किया, उन्होंने कभी चीज़ों को नेगेटिवली नहीं देखा. ह्यूमन बॉडी भी उन्होंने दिखाई है. उन्होंने ह्यूमन बॉडी दिखाने का अर्थ है कि उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया है. उन्होंने इंडियन इथोस और इंडियन मैथोलॉजी को भी दिखाया है, उन्होंने वायलेंस को भी शो किया है. लेकिन हर चीज़ को एक लिबरेशन, एक मॉडर्निटी, एक पर्सपेक्टिव की तरह उन्होंने लाइफ को दिखाने की कोशिश की है. जैसे चरखा है, योगी है, योगिनी है. तो अपर्णा कौर को जब हम देखते हैं, उनके काम को जब हम देखते हैं, तो हमें भारत दिखाई देता है. और रक्षक की भक्षक उन्होंने एक सीरीज भी बनाई थी. तो दीज आर द आइडियाज विच यू मस्ट ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड. जैसे उनके पेंटिंग्स के अंदर बसौली मिनिएचर्स के भी कुछ एलिमेंट्स हैं, और पर्शियन मिनिएचर्स के भी कुछ एलिमेंट हैं. सिख मिनिएचर गुरु नानक देव जी का भी उन्होंने एलिमेंट लिया. तो ये आप चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि कैसे उन्होंने अपने आप को इनोवेटिव करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और आप कह सकते हैं एक माइंड ब्लोइंग और एक अमेजिंग अपने आप को उन्होंने पर्सनैलिटी किया. जबकि उनकी मदर जो थी, मदर भी उनकी ऑथर थी, अजीत कौर, ऐसा हम कह सकते हैं. आपको नाम पता होने चाहिए. The drug-based weight loss is gaining footing in Indian market, obviously, because we believe it is in shortcut. We believe we have money to put in. We believe it's a magic drug, and we believe that it is not. It is worth taking the risk. लेकिन वही बात है, किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता. इंडियन वेट लॉस इंडस्ट्री 1990 से बूमिंग में आई है लिबरलाइजेशन के बाद, और आज तो इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स दे विल शेयर कि आप एक बार कुछ कर लो और हो जाएगा, पर ऐसा होने वाला नहीं है. So weight loss is an important, but then best way is again a long-term sustainable weight management. Coming to the next point. Again, on the same line, CBSE is asking schools to set up sugar boards to prevent type 2 diabetes in children and teens and weight in. आप तो स्कूल से बाहर आ गए हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन खतरे में है, और उनकी कैलोरी बढ़ती जा रही है. एंड देन स्पेशली दे आर मंचिंग टू मच मोर देन रिक्वायर्ड, एंड देन बैलेंस डाइट इज मिसिंग. तो दैट इज व्हाई इट इज सजेस्टिंग ए बैलेंस डाइट फॉर फिजिकली एक्टिव बॉयज एंड गर्ल्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन द फ्यूचर, बीइंग एन ऑफिसर इन द फ्यूचर, हाउ मोर यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट, ये आपको सोचना है. सीबीएसई का एक डायरेक्टिव है, लेकिन ये डायरेक्टिव कितने हद तक उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये प्रोसेस फूड को लिमिट करके, रेगुलर मील टाइम्स, इंकरेजिंग हैबिट ऑफ नॉट स्किपिंग ब्रेकफास्ट, प्रमोट हाइड्रेशन, चूज वाटर ओवर शुगरी बेवरेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोकोमी लॉन्चेस सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन अगेंस्ट प्रेसिडेंट रूल. तो कोकोमी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट पे इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के लिए इंपॉर्टेंट है. कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी. सो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया अगेंस्ट द प्रेसिडेंट रूल बिकॉज दे वांट दैट द स्टेट must follow the due process of law and the rule. So announcement is followed by expiry of its 48-hour general strike from midnight of May 21. And उन्होंने जो the strike is against that the words Manipur state transport was it was masked allegedly by the security person. उन्होंने bus carrying journalists to cover the शिरुई लिली फेस्टिवल. हमने भी शिरुई लिली फेस्टिवल पे एक छोटा सा वीडियो बनाया है. वी विल बी आल्सो पुटिंग इट अप. सो यही बात है कि ये इससे दिखाता है कि कैसे कम्युनिटी, स्टूडेंट्स, वुमेन ग्रुप, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सबका रोल है. मणिपुर की अपनी एक आइडेंटिटी है, हम मणिपुर से दूर नहीं है. मणिपुर को जो कष्ट है वो भारत का कष्ट है. And then there is a constitutional model to follow, there is a rule to follow. So that is what you can learn about it. You can look into it that how state government when it is in suspension, गवर्नर का रोल क्या होता है, उस एंगल से आपको लक्ष्मीकांत या अदरवाइज भी आप गूगल करके साथ में देख सकते हैं. Assam's Nagashankar becomes model for turtle conservation. Very important. Nagashankar in Assam's Biswanath district has been designated the model temple for turtle conservation.
Padma Hajarika, MLA, it acknowledged the temple on behalf of local community in the World Turtle Day. Nag Shankar's role in promoting conservation of turtles. Very important examples आप मेन में ले सकते हैं. Event was organized by Kaziranga National Park and Tiger Reserve, Assam State and Zoo, नाग शंकर टेम्पल कमेटी. ये आप बस इतना आप ले लेंगे, इतना भी हमारे लिए बहुत होगा. और तीन चार नाम जैसे यहाँ दिए हुए हैं, टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन, तो आप अपने मेंस के एग्जाम के लिए आप अभी से नोट कर लीजिए. इट इज गोइंग टू हेल्प अस. Nominations window is now open for Business Line Changemaker Award. So definitely not just Business Line, but Indian Express, Times of India, Jansatta, Dainik Bhaskar, everybody do so. It showcases the vibrant democracy. It showcases the fourth pillar of democracy. It also showcases that we have atmosphere and we have a communication exchange with the different sections in society. It has got different categories. वो हमारे लिए important है मेंस के लिए. Social transformation, digital transformation, financial transformation, and young change maker and iconic चेंज मेकर. सो द पॉइंट इज दैट इनमें जो इम्पैक्ट होगा, जो आएगा, वो हम मेंस के लिए अपने आंसर्स में लिख सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पीएलआई स्कीम की हमने पहले भी बात की है. फॉर 11 फार्मा प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम आउट विद नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डिक्लोफेनिक सोडियम. वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर पार्ट ऑफ द एवरीडे लाइफ. आप जाइए पीडियाट्रिशियन के पास, आप जाइए किसी भी डॉक्टर के पास. नियोमाइसिन पाउडर होता है, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, स्ट्रिप्टोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है. दीज आर ऑल एंटीबायोटिक्स. एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डिक्लोफेनिक सोडियम भी बहुत कॉमन है. सो द गवर्नमेंट आर गोइंग टू डू सो बिकॉज इट वांट्स देम टू क्वालिटी में, जब उसको जेनरिक तरीके से ग्रो किया जाएगा, इट इज गोइंग टू बूस्ट प्रोडक्शन, जॉब्स, एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी फायदा होगा. दैट्स व्हाट यू हैव टू पिक अप. यू हैव टू सी कि 14 की सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट कितना है, 1.61 लाख करोड़. मेंस के लिए आप इस फैक्ट को रखिए. और साथ में 10 सेक्टर जो है वो आपको पता होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए. लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉल मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम, नेटवर्क प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, वाइट फूड्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमो कंपोनेंट्स. ये हमें पता होगा तो हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. ब्लू लाइट इंक्रीजेज म्यूटेशंस इन ईस्ट डीएनए. देखिए वही बात है, ब्लू लाइट इज वेरी वेरी यू नो dangerous. So point is that prolonged exposure to blue light could also pose similar risk to other organisms, that means in human beings. So blue light की बात वही है कि आप अगर एक्सपोजर बढ़ता है, फिर उसके बाद जो है अगर व्हाट आई कैन से पोल्यूशन बढ़ता है, climate change होता है. So that's what is here. The DNA of living organisms change slightly over time thanks to mutations. One kind of mutation is the loss of heterozygocyto zygosity, that is LOH, जब एक सेल जेनेटिक डाइवर्सिटी को सर्टेन पार्ट डीएनए के लूज कर देता है. तो पॉइंट वही है कि हमें देखना है कि कैसे हम एटमॉस्फेयर, कैसे हम पूरे के पूरे क्लाइमेट को, कैसे हम सिस्टम को ज़्यादा ऑल्ट्रेशन की तरफ ना लेके जाए. हाइड्रोजन लेंसेज अलाउ पीपल टू सी नियर इंफ्रारेड लाइट. सो दिस इज एन एग्जांपल. आपको पता होना चाहिए इसका फिनोमेना. हाइड्रोजन कॉन्टैक्ट लेंसेज दैट अलाउ ह्यूमन टू सी नियर इंफ्रारेड लाइट. दे यूज nanoparticles and release one at higher energy. Okay. Moving further. So now the question arises, does neurodegeneration start with blood vessel damage? ये क्वेश्चन है. लेकिन मैं यहाँ बात करूंगा न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस की, लाइक एल्जाइमर्स में बिगन विद डैमेज टू ब्रेन प्रोटेक्टिव ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीबी, नॉट न्यूरॉन्स. एक एग्जांपल है ये. सो इन्फ्लेमेशन, म्यूटेशन. तो TDP43 प्रोटीन, चाहे भले आपको याद ना रहे, बट वी मस्ट नो दैट वी मस्ट नो दैट इंडो इंडोथीलियम इज अ लेयर ऑफ सेल्स लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स. बस हमें इतना देखना है यहाँ से. दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. एल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर एक तरीके की डिजीज है जिसमें न्यूरो डिजनरेशन हो जाता है और धीरे धीरे हम अपना नाम, अपनी मेमोरी, हम सब भूल जाते हैं. सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. डिकोडिंग टर्म इंश्योरेंस फॉर वुमेन, वही बात है. टर्म इंश्योरेंस का अर्थ वही है कि आपने पैसा लिया और आपको हर खतरे के लिए आपको वो पैसा, जब अगर कुछ हो जाता है तो आपको मिलेगा. अदरवाइज एक समय के बाद उससे कुछ लेने का वो नहीं है. तो पॉइंट है कि वुमेन्स टर्म इंश्योरेंस 15 to 20% चीपर देन मेन. होम मेकर सम इंश्योरेंस पेग टू फैमिली इनकम. पॉलिसी शुड बॉट इन इंडिविजुअल बेसिस पॉलिसी. तो क्वेश्चन क्वेश्चन यही है कि देयर इज अ माइनर डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस फॉर वर्किंग वुमेन. कॉस्ट इज यू नो प्राइमरी डिफरेंशिएटर. जो होम मेकर्स हैं, वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि रोल ऑफ होम मेकर इज एज इंपॉर्टेंट दैट ऑफ फैमिली मेंबर हुज इनकम इज टेंजिबल. होम मेकर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज वो भी होनी चाहिए. तो करंट प्रोवाइडर्स ऑफ होम मेकर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज इंक्लूड HDFC लाइफ है, एक्सिस मैक्स है, टाटा AIA है, ICICI प्रू है, बजाज अलायंस है, PNB मेट लाइफ है.
So the sum insured through is restricted to 1 crore at the upper limit, even if the spouse salary is more than 15 lakh. These covers cost of an annual premium of 12 to 14,000. तो ये एक बात है एक समय तक के लिए कि भाई कुछ हो जाए तो फिर उसको आप कंपनसेट कर सकें. गुजरात टू असिस्ट एलियन डायमंड्स एंड यूनिट वर्कर्स. इंडिया के लिए एक्सपोर्ट जो डायमंड एंड जेम्स का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द पैकेज ऑफर्स 13,500 स्कूल फीस फॉर ईच ऑफ देयर स्कूल गोइंग चाइल्ड फॉर अ ईयर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कैसे किसी भी राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो अपने उन चीज़ों को उठाएगा जो चीज़ें उसको आगे बढ़ने में मदद करती हैं. यानी कि हर राज्य के लिए ये बात आ जाती है, ये सिर्फ गुजरात के लिए नहीं है. गुजरात का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर. हम देखें तो बाकी चीज़ों के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है. सो फॉर दीज पॉइंट्स प्लीज मेक अ नोट, मेक एन अंडरस्टैंडिंग. वीकली रिवीजन मस्ट है, मैंडेटरी है. नहीं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब नहीं होंगे, जो हम हर कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकते. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अनसरकारी. थैंक यू वेरी मच.